never you should leave the class before taking permission. This is indiscipline. And you know that discipline is very necessary for us. If we don't follow discipline, we can't progress in our life. And discipline and then self-discipline. We should follow the rules that we make for us, and it is necessary for us to make rules for us. If we don't make any rules for us, the others will make rules for us, and you will have to follow it. So it is better for all to develop their own rules, and they must follow them, and this is very necessary in our life to progress. So I think you are ready for today's session, and today we have a listening session. If you have any questions, you can put them before me. सर So today, आप yes, भी बोल सर आप भी बोल रहे हो, अभी तो आ रही है आवाज, फिर बाद में यूट्यूब पे आती ही नहीं है आपकी आवाज। कि बेटा आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नहीं सर, जब मैं बाद में सुनती हूँ ना तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं सुनाई देती, औरों को तो फिर भी, पर मेरे तो कान में दिक्कत है। कान में दिक्कत है? हाँ तो मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है, किसी की भी आवाज नहीं सुनाई देती? सर, आपकी बहुत धीरे आती है। ओके, ये सर वो रिकॉर्डिंग में आती होगी। सर यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है सर। यूट्यूब की रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं पर ये मेरी तरफ से ही कोई इश्यू है, इसका मतलब मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, मैंने भी कई बार नोट किया है इस चीज। सर आप हेडफोन लगा लिया करो सर, तब क्लियर आती है। सर आप धीरे धीरे आती है सर आपकी आवाज। ये लो सर आप अब मैंने आज हेडफोन लगा लिया है, और आप आज नोट करना अभी भी मेरी आवाज स्लो आती है क्या, धीरे आती है क्या? सो today we are talking about a great problem of today, of present time, and you know what is that problem, and that is the problem of pollution. But now what I am going to tell you is worth listening, because there may be some different things. You can get some facts regarding pollution. So now focus on it, and please keep your cameras switch on. Who is there with the idea of Gaurav Meena? If it is Anjali, switch your camera on. So you know that we have a lot of problems in present time, but what I am talking about is the pollution, and that is the air pollution. So the most serious problem today is air pollution. In big Indian cities, the vehicular pollution accounts for more than 2/3 of total air pollution of the city. आप नोट कर सकते हैं वर्ड्स को. If some words are not clear to you, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ. The vehicles are the major sources of nitrogen oxides, carbon nanoxide, carbon monoxide, and hydrocarbons. ये कुछ facts हैं, नोट करके रखिए. The next major contributor to the city's air pollution are the industries. Air pollution caused especially by emission of poisonous gases has been
linked to lung cancer, asthma, and bronchitis. These are the names of diseases. In fact, 4 out of every 5 cancers, there are different types of cancers, are एक्सक्यूज मी linked. सर, Yes. सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट सर क्या बोलते हैं, हम 10 मिनट में आ सकते हैं क्या? अब बेटा वो आपको देखना है, 10 मिनट में आप आओगे तो हम वेट नहीं करेंगे आपका, हमारी क्लास तो बराबर चलेगी। हाँ सर बराबर चला, लेकिन 10 मिनट में आ सकते हैं क्या? हाँ, अब आप देख लो बेटा, आप जो आपको जरूरी लगे वैसा कर लो आप। 5 ओके cancers सर। are linked to toxic and hazardous chemicals in the environment. Nitrogen oxide emitted by vehicles is respiratory irritant that causes breathing problems, while sulfur dioxide damages lung function. The cities are also ridden with noise pollution caused by automobiles, railways, aircrafts, industrial machines, and social and religious activities. The most disturbing trend is in silence zones where noise level exceeds permissible limits not only during day but also during night. So we have talked about 2 types of pollution, air pollution and noise pollution in this passage. And regarding air pollution, I told you many things, the reasons of air pollution and the results of air pollution. And also I told you the outcome or the results of noise pollution. And also I told you the regions of noise pollution. Now I am again reading it. Now be careful at the time of listening. The most serious problem today is air pollution. In a big Indian city, the vehicular pollution का मतलब व्हीकल से होने वाला pollution, vehicular pollution, VEHICULAR, vehicular, the vehicular pollution accounts, यानी कि जिम्मेदार होना, for more than 2/3 of total air pollution of the city. क्लियर हो गया होगा आपको ये? The vehicles are the major sources of nitrogen oxides. Means the smoke that emits the vehicles. What is there? There are nitrogen oxides, carbon monoxide, and hydrocarbons. The next major contributor to the city's air pollution are the industries, vehicles and industries. Air pollution caused especially by emission of poisonous gases has been linked to lung cancer. Because of air pollution, there are so many chances of being the victim of lung cancer, asthma and bronchitis. All are the problems, asthma and bronchitis related to lungs. In fact, 4 out of every 5 cancers, means if there are 5 patients of cancer, so you can say that 4 out of them are linked to toxic and hazardous chemicals in the environment. Nitrogen oxide emitted by vehicles is respiratory irritant that causes breathing problems. Nitrogen oxide is the main reason of breathing problems. While sulfur dioxide damages
लंग फंक्शन, फैक्ट्स है यहाँ पर ये. The cities are also ridden with noise pollution caused by automobiles, railways, aircrafts, industrial machines, and social and religious activities. Means where people blare the loudspeakers at loud volume. So this is also a reason of noise pollution. The most disturbing trend is in silence zones where noise level exceeds EXCEED permissible limits, not only during day but also during night. Now you can ask me. सर रिलीजियस एक्टिविटी से कौन सा पोल्यूशन हो गया? अब मैंने बताया ना आपको कि people play the music systems, they blare the loudspeakers at loud volume. समझ में आ गई बात आपको? नॉइज पॉल्यूशन का मतलब क्या हो Sir? गया? हाँ. Sir, I want to say that we usually we are not concerned about burning agarbattis that we usually and dhoobattis. But if we look at countries level and the number of temples in our country, then we can find that agarbattis and dhoobattis share a good proportion of pollution, No, air pollution. I don't agree with you. Because when we burn, you can say that agarbatti is not by dhoop battis or dhoop sticks, there is no pollution. There is no emission of carbon dioxide. Make it sure. Sir, PM 2.5. How? If you are using wrong things, then how can you say that this thing is responsible for it? Sir, जैसे when we are in a closed room, then if we are burning agarbatti, then they Agarbatti is a different thing that contains, क्या बोलते हो आप उसको, that contains the bamboo sticks and that are harmful for our health. We should not burn agarbattis. We should never burn agarbattis. We should use dhoop battis, dhoop sticks where there is no stick of bamboo. Because of bamboo, that is harmful. Because of the bamboo sticks, that is harmful. And we should not burn it. But if you use dhoop batti and dhoop sticks, there is no stick of bamboo. And if there are not impurities, it is not harmful, it is useful. Make it sure. Yes. Anything else? Any meaning? Sir, irritant, Irritant का मतलब परेशान कर देने वाला. emitted. एमिटेड का मतलब तो ऐसे होता है कि जैसे बाहर निकलता है, जैसे साइलेंसर में से. एमिट का मतलब उत्सर्जित करना. एमिशन का मतलब उत्सर्जन. जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी उत्सर्जन तंत्र होते हैं, लाइक दैट गाड़ियों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर भी होते हैं. व्हीकल्स आल्सो हैव एमिशन सिस्टम. सर रेड का रिडन बोला था ना आपने? रिडन. The cities are also ridden with noise pollution, यानी कि शहरों के अंदर नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैला हुआ है. ये मतलब होगा यहाँ पर रिडन. यानी कि एक तरीके से मान लो कि नॉइज पॉल्यूशन की सवारी, नॉइज पॉल्यूशन सवारी करता है शहरों पे. ये मतलब हुआ ना रिडन का मतलब, सवारी करने का मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है. ऐसे समझा करो मीनिंग्स को आप. और बोलो. सर हाँ. सर ये वही है ना, राइड रोड रिडन. हाँ वही है. और सर ये वैक्यूलर की स्पेलिंग क्या थी? VEHICULAR, वैक्यूलर मतलब रिलेटेड टू व्हीकल्स. एनीथिंग एल्स? रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, श्वसन तंत्र. हमारा जो श्वसन तंत्र होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. होता है ना बेटा?
नासिका और ये नाक और अंदर जो हमारे फेफड़े हैं वो सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, श्वसन तंत्र कह सकते हो आप इसको। और बोलो। सॉरी सर एक्सटीट। एक्सीड नहीं, एक्सीड्स, EXCEEDS। एक्सीड का मतलब ज्यादा हो जाना। वो सेंटेंस क्या बोल रहा है कि द मोस्ट डिस्टर्बिंग ट्रेंड इज इन साइलेंस जोन्स। साइलेंस जोन्स भी होते हैं कुछ जहां पर कि आप शोर शराबा नहीं कर सकते, लाइक हॉस्पिटल्स, लाइक नियर हॉस्पिटल्स, नियर स्कूल्स। So those are the silence zone. But the most disturbing trend is in silence zones where noise level exceeds, जहां पर कि जो नॉइज लेवल है, जो आवाज का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, exceeds permissible limits, यानी कि जो परमिशन है ना जिस सीमा तक, उस सीमा से भी ज्यादा बढ़ जाता है वो। Not only during day but also during night। और बोलो। सर एमिशन। एमिशन का बेटा उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, है ना? यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिशंस आर देयर, लाइक सोच के देखिए अपनी बॉडी के अंदर से कहां कहां से एमिशन होता है। कैन यू टेल मी? सर स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो अंदर की बात हो गई। कौन कौन से आपको समझ में आते हैं जो जहां से उत्सर्जन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं, व्हाट एवर वी ईट, व्हाट एवर वी ड्रिंक। सर एलिमेंट्री कैनाल। हाँ, मतलब उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है, जो किस किस तरीके से होता है, समझिए आप बात को जरा। मूत्र के रूप में, मल के रूप में, पसीने के रूप में, नाखूनों के रूप में, बालों के रूप में। आ रही है सर बात? थूक के रूप में नहीं हो। थूक तो उत्सर्जन नहीं कह सकते आप, पर चलो ठीक है आप कह लो, पर कि ये उत्सर्जन होता है, आप समझिए, यानी कि बॉडी के अंदर से निकलती हैं ये चीजें। हम जो भी कुछ खाते पीते हैं ना, उसका अंदर जाकर के एक सिस्टम होता है, उसमें से काम की चीजें निकल जाती हैं और जो बेकार की चीजें बचती हैं वो बाहर निकल जाती हैं अलग अलग तरीके से, नाखून के रूप में, टॉयलेट के रूप में, आपका स्टूल के रूप में, यानी कि मल मूत्र, आपका पसीना, आपका नाखून, आपके बाल। अब इसी तरीके से सेम वे, हम जब गाड़ी में अपना कोई भी ईंधन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, समझिए इस बात को, तो उसमें भी ये सिस्टम होता है। सर उसमें भी यही सिस्टम होता है। अब वो जो चीजें जो दूसरी बाहर निकल रही है ना, उस बचा हुआ अवशेष जिसको आप बोलते हो धुएं के रूप में, उस धुएं के अंदर हानिकारक गैसें होती हैं, लाइक इसमें नाम बताया गया है आपको, जो गैस नुकसानदायक होती हैं वो यहाँ पर बताया गया है आपको। कौन कौन सी बताइए? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये उस धुएं के अंदर होते हैं। ये एक प्रकार से उत्सर्जन होकर के निकलते हैं, यानी कि पेट्रोल में, डीजल में, ऑयल में जो चीजें काम की होती हैं, जो पावर की चीजें होती हैं, वो अलग हो जाती हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर से, हमारे खाने में से अलग हो जाता है। और जो बची हुई चीजें होती हैं बेकार, छन करके, जैसे छन करके बाहर निकलती है, तो लाइक दैट वो बाहर आ जाती हैं। तो सब जगह होता है ऐसा, तो व्हीकल्स में भी होता है। तो साइलेंसर लगा हुआ होता है, वहां से धुआं निकलता है। वो धुआं है क्या? यही तो है वो धुआं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर से मल मूत्र निकलता है, पसीना निकलता है, नाखूनों के रूप में बाहर निकलती हैं वो चीजें। समझ में आ गई ना मेरी बात आपको? वो ऐसे गाड़ियों में से बाहर निकलता है। दैट इज एमिशन। एनीथिंग एल्स? सर वो अस्थमा के रीडन, रीडन की स्पेलिंग। RIDDEN। हाँ काजल। सर वो एक अस्थमा के साथ एक और बीमारी थी ना, वो उसको बताना। अस्थमा के साथ मैंने शायद आपको बताया था कि कैंसर, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। सर स्पेलिंग बोल दो एक बार। BRONCHITES, ब्रोंकाइटिस। सर TES या TIS।
TES. हाँ, आप चाहो तो लिख लो ब्रोंकाइटिस का, मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, नॉलेज बढ़ाओ अपनी। लिख लो, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन, पकड़ो स्पेलिंग्स को, आप कोई नहीं बताएगा आपको स्पेलिंग है। साउंड पे फोकस करो, कर सकते हो तो, तुम्हारा लेवल है तो, नहीं तो छोड़ देने में फायदा है क्लासेस को। अगर तुम्हारे ऊपर से जा रही है तो क्लासेस को छोड़ दो, बच्चों के लिए नहीं है क्लासेस। अगर किसी का फोकस नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आती है बात, क्लास छोड़ देना चाहिए, टाइम से ठंडक ठंडक में निकल लो। आजकल तो वैसे भी सर्दी का मौसम चल रहा है, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए खुद के साथ। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन, स्पेलिंग बोल रहा हूँ इन्फ्लेमेशन की, INFLA, चेक कर लो अपने अपने, जिसका साउंड पे फोकस होगा वो कर देगा। ज्यादा से ज्यादा एक गलती होगी, बता दूंगा कौन सी होगी। INFLA, इन्फ्लेमे, MATION, ज्यादा से ज्यादा आपने क्या किया होगा, डबल एम की जगह सिंगल एम रखा होगा बस, हाँ सर। बाकी सब ठीक होगा। अभी तुम्हारी खोपड़ी में नहीं बैठे तो रटना ही है तुमको, CAT कैट CAT कैट CAT कैट CAT कैट, रट्टा मारो और सड़ाओ अपना दिमाग। और पूछो, ब्रोंकाइटिस, अच्छा, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइल लिखो, ब्रोंकाइल, कोशिश करो लिखने की, ब्रोंकाइल, स्पेलिंग बोल रहा हूं, BRON, ब्रोंकाइल, CHIAL, ज्यादा से ज्यादा एक स्पेलिंग गलत की होगी आपने, एक या दो, अगर फोकस है तो। सर मैंने सी की के लिख दिया। कोई बात नहीं है, अब प्रैक्टिस में रहोगे तो अपने आप सी आने लग जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा आपको कि कहाँ सी आना चाहिए, कहाँ के आना चाहिए, गारंटी दे रहा हूं मैं। इसको कोई नहीं सिखा सकता, आपको माइंड से पकड़ना पड़ेगा इन चीजों को, फोकस करके, साउंड पे फोकस करके बस। सर रटने का कोई काम नहीं मेरे पास में, कोई रटने के भरोसे में बैठा हो तो छोड़ के भग जाओ यहाँ से। हाँ बोलो, आगे सर लिखो, ये लास्ट में एक मिनट लिखो। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाइल ट्यूब्स, 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 TUBES, कोमा लगाओ और क्लियर कर देता हूं। द एयरवेज, द एयरवेज लिख लोगे स्पेलिंग एक ही साथ है पूरा वर्ड, एयरवेज, एयरवेज, AIRWAYS, एयरवेज दैट कैरी, कैरी CARRY, एयर टू द लंग्स, लंग्स LUNGS। समझ में आ गया, समझाऊं? है, समझ में आ गया? पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लो मेरे से। हम्म, और कोई बात, कुछ और पूछना है? सर ये ब्रोंकाइल्स की स्पेलिंग में CHIAL है ना? ओके सर। कोई और कोई दिक्कत पूछ लो फटाफट से। आई एम अबाउट टू रीड इट थर्ड टाइम, इसके बाद क्वेश्चन पूछूं। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है बेटा? इन्फ्लेमेटरी का मतलब, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग आ जाना, एक तरीके से स्वेलिंग आ जाना। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन आ जाना, फूल जाना। सर हाँ, सर इन्फ्लेमेशन का मतलब तो महंगाई भी होती है ना? हाँ होती है, वो कुछ और है वो। सर वो इन्फ्लेशन होता है हाँ, वो। इन्फ्लेशन होता है वो, इन्फ्लेशन होता है वो। ओके, थर्ड टाइम रीड कर रहा हूं मैं, पूछ लेना, रोक के पूछ लेना मेरे को, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो। द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम टुडे is air pollution in a big Indian city
द वेक्यूलर पॉल्यूशन अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब जिम्मेदार होना, वजह बनना, फॉर मोर देन 2/3 ऑफ टोटल एयर पॉल्यूशन ऑफ द सिटी. द व्हीकल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स. यानी कि जब पेट्रोल डीजल जब जलता है ना अंदर इंजन में, तब ये चीजें उसमें से आती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स. और ये सारी की सारी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, ये पॉल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को. द नेक्स्ट मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सिटीज एयर पॉल्यूशन आर द इंडस्ट्रीज. एयर पॉल्यूशन कॉज्ड स्पेशली बाय एमिशन. अब तो समझ में आ गया क्या एमिशन का मतलब? EMISSION, emission of poisonous gases has been linked to lung cancer, asthma and bronchitis. In fact, 4 out of every 5 cancers are linked to toxic and hazardous chemicals in the environment. Nitrogen oxide emitted by vehicles is respiratory irritant that causes breathing problems, while sulfur dioxide damages lung function. The cities are also ridden with noise pollution caused by automobiles. ऑटोमोबाइल्स का मतलब जितने भी व्हीकल्स होते हैं, लाइक अपने जो बस, कार, ट्रक वगैरह, ये जो इस तरीके के व्हीकल्स होते हैं, ये सब ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में आते हैं. रेलवेज, एयरक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज. द मोस्ट डिस्टर्बिंग ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब चलन, प्रचलन, ये चलन आजकल होने लग गया है. आजकल ये ट्रेंड चल रहा है यार, समझ रहे हो ना आप? तो यार आजकल तो इसका ट्रेंड चल रहा है, आजकल तो इसका ट्रेंड चल रहा है. The most disturbing trend is in silence zones where noise level exceeds, यानी कि बढ़ जाता है, exceeds permissible limits, not only during the day but also during night. फटाफट से 2 मिनट दूंगा, पूछ लो जो पूछना है. क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज आपसे डायरेक्ट. आ जाओ फटाफट से कैमरे चालू करके. सर एमिटेड का मतलब? एमिटेड का मतलब एमिट से बना है ना, बाहर आना, उत्सर्जित होना. एमिट से तो बना है एमिशन. एमिट एक वर्ब होती है. एमिट का मतलब बाहर निकलना, जैसे धुआं बाहर निकालना, जैसे हम लोग अपने पसीने से, नाखूनों से, हम एमिट होता है वो हमारा जितना भी वो सारा का सारा वेस्ट होता है मटेरियल, दैट इज एमिट. सर वो, सर इन साइलेंट जोन था या साइलेंट जोन था? साइलेंट होगा. इन साइलेंस जोन्स, इन अलग है, साइलेंस अलग है. इन अलग है बेटा, प्रीपोजिशन है वो. ओके, आर यू रेडी to answer the questions? Please switch your cameras on. हाँ, पूछो फटाफट से जल्दी. लिंक, लिंक्ड का मतलब जुड़ा हुआ होना, जुड़ना. लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जुड़ना. क्वेश्चन पूछूंगा अब मैं, जो सुनाया है मैंने 3 बार सुना दिया मैंने आपको. या तो जवाब दे दोगे या पास हो जाएगा क्वेश्चन आपसे. कोई बहसबाजी नहीं करेंगे हम. किसी को भी नहीं आएगा तो फिर हम समझा देंगे. आ जाइए. दिमाग लगाना है बस, जो सुनाया आपने. हाउ इज एयर पॉल्यूशन हैजार्डियस टू पीपल्स हेल्थ? कैमरे चालू रखोगे तभी नाम बोलूंगा मैं, उसका क्लियर बोल रहा हूं मैं. सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल. आपने नहीं भी सुना होगा तो भी बोल सकते हैं, वैसे सुनना चाहिए. हाउ इज एयर पॉल्यूशन हैजार्डियस टू पीपल्स हेल्थ? वैष्णवी. Yes, air pollution is caused by you can see in big cities vehicles are running and there are many emission of gases like nitrogen gases and
And there are also big problems like asthma problem, cancer problem, bronchitic, Bronchitis. bronchitis, etc. Okay. Rakshit, same question. Yes, sir. Sir, because of air pollution, different problems and diseases can be caused like bronchitis, asthma, sir, many different types of cancers and different diseases. How do nitrogen oxide and sulfur dioxide cause breathing problems? How do nitrogen oxide and sulfur dioxide cause breathing problems? Harshit. Sir, because it directly affects our lungs and these damage the functions of our lungs. What these? Sir, sulfur I dioxide told and you two nitrogen. things. Yes, sir, sulfur Nitrogen dioxide oxide and and sulfur. nitrogen How dioxide. does sulfur dioxide creates problem and how does sulfur dioxide creates problem? Clear your answer. Yes, sir, because the emissions left by them are in the form of small particles, and when these enters our lungs, these disturb our No, no, lungs. no, 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 no. What is the or where is the effect of nitrogen oxide and where or what is the effect of? I don't want to the process. I don't want to know the process of such diseases. Sir, Yes. sulfur dioxide causes acid rain. No. Rohit. Sir, just like nitrogen dioxide and sulfur dioxide, these types of particles go into our respiratory tract and causes problems such as asthma, bronchitis, etc. थोड़ा सा Sir, साउंड कम हो रहा है. हर्ष. मैंने अलग अलग जब मैं कह रहा हूँ, you have to tell the effect of nitrogen oxide and what is the effect of sulfur dioxide, then why are you not trying to understanding it? sir, according to me, these both causes the effects in our lungs that are the diseases. Nitrogen oxide makes our respiratory system irritant or weak, and sulfur dioxide damages lung function. Okay. Sir, can you repeat the answer? Yes. Yes. Oh, you want me to repeat the answer? Nitrogen oxide weakens our respiratory system, and sulfur dioxide damages our lung function. Okay, sir. You know, there are the writer has talked about two types of problems. Can you tell me what are these two types of problems? Lakshmi, has Hers taken his turn? Yes, sir. Okay, Lakshmi. Yes, sir. So can you repeat the question? Why? I forgot it. Forgot. This is not to forget. Where are you right now? Sir, I stayed my Madhua's house Okay, now. no. Matlab, where are you mentally? Sir, I think about the dead question. The writer, how many problems has the writer talked about in this? Yes, sir. The writer talked about two type of problems. One is air pollution and second is noise pollution. Very good, very good.
So, you know, in this passage, how many regions or what are the regions that the writer has given? Matlab the regions that are responsible for air pollution. Come on, Khushi. खुशी खुशी नाम है ना उसका हस खुशी हाँ सो गई क्या आदित्य कैमरा जिसका बंद है मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा उसका सॉरी गौरव मेरा तो ओपन है तेरे को तो आंसर ही नहीं आया तेरे को तो गौरव कर दो रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन में मेरा यार बार बार मैं रिपीट करूं मैं रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन यार अनुज Yes, sir. Sir, like vehicles vehicles take a part in this. मैं इतनी ज्यादा रामायण सुनना ही नहीं चाहता मैं यार Sir, vehicles, aircraft, railways. तो व्हीकल्स में आ गया ना वो सारा का सारा Yes, sir. और एंड अदर थिंग And social and religious activities. No, I am talking about air pollution. You are going to noise pollution. What are the two regions have been given here in this passage by the writer for the air pollution? This is the question. Vehicles and industries. Yes. So why do you take so much time to answer such small questions here? Why don't you focus? Aditya was not able to answer this question. Gaurav was not able to answer this question because they didn't listen the question properly here. You are losing. What is responsible means you have been Anu said that there are two types of regions that vehicles and industries. So what is the role of vehicles or how much you think that vehicles are responsible for how much pollution do you think the vehicles are responsible for how much pollution? This is my question and this question goes to Kajal. Sir, because vehicles take part. No, I am not. How much? Focus on my question. Just 2/3. Well, yes, you are right. 2/3 of total pollution is caused by vehicles. You are right. मुझे ऐसे चाहिए मेरे को आंसर यार मेरे को पूरी रामायण नहीं चाहिए मेरे को 1 वर्ड में 2 वर्ड में एक सेंटेंस में आंसर चाहिए मैं क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहा हूँ सभी लोग ध्यान से सुनो इस बात को आप ओके What are the major sources of nitrogen oxide, carbon monoxide, and hydrocarbons? Simran. Sir, vehicles. Perfect. Right. Good. Keep it up. How is air pollution caused? Simple question. How is air pollution caused? Vipin. Yes, sir. Vehicles release smoke. अब कैसे कि vehicles emit vehicles अब सुनो vehicles चाचा vehicles emit poisonous gases
आगे आप वही आंसर है, मैंने उसको थोड़ा सा और अच्छा थोड़ा सुंदर करके थोड़ा सा डेकोरेट करके बोल दिया मैंने उसको, अच्छे शब्दों के साथ यूज किया। आई थिंक ऑल हैव टेकन देयर टर्न। इफ देयर इज रिमेन। गौरव मीणा की आईडी से कौन है? कैमरा चालू कर लो अपना। मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको बंदे को, जो भी कोई है। गौरव मीणा की आईडी से कौन है यहाँ पे? ना कैमरा चालू है ना मुझे पता चल रहा है। कौन है रे गौरव ये तेरी आईडी से? कौन है तेरी आईडी से? आईडी रखी है बस, यहाँ पे बंदा है ही नहीं, पता ही नहीं है बंदा है बंदी है कौन है। आईडी रखी है बस। और ये सुमित्रा मीणा की आईडी से कौन है? सर इससे गौरव तो वो भी गायब हो गए ना दोनों। और इधर भी इस पे अंजलि होगी, दोनों भाई बहन गायब है। ये आईडी चालू है और भाई गायब है, दोनों के दोनों जने। अब बताओ क्या करें इनका? कौन बच्चे छोड़ गए? एब्सेंट लगा रहा हूँ अभी। सर एब्सेंट से थोड़ी सर होगा, रिमूव कर दो। सर इनका है ना आपके प्राइम वाले मोड से फेस टू फेस कराना पड़ेगा। अभी संडे को सर मीटिंग हो रही है। आप सब में एक एक चीज नोट कर रहा हूँ मैं। मैंने पहले ही आपको कह दिया था बी अलर्ट। इसी संडे को या सैटरडे को मैं मीटिंग कर रहा हूँ आपके पेरेंट्स के साथ में। कलेश होएगा आपके तगड़ा वाला, देख लेना तुम, बता दे। ऐसा थोड़ी होता है। सर हमारे साथ भी तो संडे को मीटिंग है, मतलब सॉरी वो है मीटअप। वो अपनी है आपस की। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मेरी अलग से मीटिंग है स्पेशल, जिसमें तुम्हारा इट इज नेसेसरी फॉर यू टू बी प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। ये बहाना नहीं लगा सकते तुम कि पापा वहाँ है मम्मी वहाँ है। तुम्हारे पापा मम्मी अलग अलग जगह भी होंगे ना, और तुम भी अलग अलग जगह होगे तो भी ले सकते हो आप। ये बहाना नहीं चलेगा आपकी वो आए नहीं, वो ये फला हो गए, कुछ नहीं। कहीं भी होके ले सकते हैं इस मीटिंग को। सर ये प्रोग्राम सैटरडे को होगा ना? सैटरडे को होगा। मैं क्या क्वेश्चन था मेरा? क्वेश्चन ही रह जाता है तुम्हारे चक्कर में। अच्छा वो तो बता दिया था मैंने। ऐसे गेम में चीटिंग तो हम नहीं खेलेंगे। खेलना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे खेल तो पूछ रहे हैं हम तुमसे, कोई खेलेंगे तुमसे, कोई परमिशन पूछ रहे हैं हम तुमसे? हम तो कह रहे हैं होगा ऐसा। So my next question is that what are the sources of noise pollution in the cities? So simple question. And this question goes to यार ये क्या हो गया? इसमें चक्कर क्या हो गया? तो ये तो भूत दिखाऊं मैं तुम्हारे को? भूत दिखाओ ना सर। भूत नहीं दिखाऊं तुम्हारे को मैं? देखो सच्ची में दिखाता हूँ तुम्हारे को मैं भूत नहीं आज। सर हमारी शक्ल तो नहीं दिखाओगे आप? सर हमारी शक्ल तो नहीं दिखाओगे ना? भूत नहीं दिखाऊं सर हम तो भूत हुए। सर छत पे बैठी हूँ। आ गई ना भूतनी की आवाज? यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। आ गया ना भूतनी की आवाज? सर ये दो लक्ष्मी मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, तुम देख लो। अपने आप ही जो बोल गई ना अपने आप ही बंदी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। सर दो लक्ष्मी कैसे? सर नानी के हूँ आज मैं तो। एक ही आईडी से दो जने अलग अलग जगह पे कैसे हो सकते हो? सर मम्मी मतलब एक ही नाम से बना दी लक्ष्मी जीमेल आईडी। आप देखो वो अपने आप ही बोल गया कौन भूत है यहाँ पे। हमको बोलने की नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सबको पता होता है अपना अपना। मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काजल हूँ। इतने डार्क में कोई भी नहीं बैठा, सबके लाइट है। ये डार्क में दिखते हैं भूत तो भूत नहीं है। तो भूत तो फिर भी थोड़ा सा बेचारा ऐसे छोड़ देता है। भूत नहीं तो भूत नहीं होती है फिर। So okay, now my question is that what are the sources of noise pollution in the cities? खुशी यस सर। वो मम्मी कुछ बोलने लग गई। मम्मी क्या बोलने लगी? आंसर देना क्वेश्चन को। ये तो बिल्कुल भूतनी की तरह ही कर रही है। सर क्वेश्चन ट्राई नहीं किया इसलिए। रिवाइज नहीं, मैं नहीं करूँ रिवाइज अभी। वैसे अंधेरे में बैठी है तो डर लग रहा है हमें तो। विपिन सर चारों तरफ अंधेरा ही है। तभी तो डर लग रहा है हमें। चारों तरफ अंधेरा है तो बेटा। विपिन ओके सर। यस सर। क्वेश्चन बता दो। मतलब ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है यार कि कोई भी इसका आंसर दे सकता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन सिटीज? सर मैं बताऊं? यही बताएगा विपिन। Machines noise in the
विकास मैन पीपल्स सर किस भी बोल रहा है मेरे है नो सर हॉर्न्स वाला अरे तो क्या सिंपल बोलेंगे सा आंसर है इसका बिल्कुल व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन बिग सिटीज खुशी Yes, sir. There are many sources like vehicles horn and automobiles horn, rings वगैरह and रिंग्स वगैरह एक्सेट्रा और I mean मतलब लाउड स्पीकर हाँ एक्सेट्रा. ओके और एनीवन एल्स अंजलि आ गई है अंजलि एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कहीं से आई है घूम घाम के कहाँ गई थी पीपल के पेड़ पे गई थी क्या सर पीछे जाऊंगी मैं। है नहीं बोल रहा मेरे से नाराज हो गई मेरे से नहीं बोल रही सर पीपल के पेड़ पे क्यों जाऊंगी मैं? कहाँ गई थी तू सर मैं ना यहीं तो बैठी थी। अच्छा सुन लो भाई सुनो तुम सारे के सारे ये तो मैं अकेला हूँ तो 2 मिनट में झूठा बना दे मेरे को देखो क्या बोल रही है. तुम सारे के सारे गवाओ कितनी आवाजें लगाई हैं इसको हमने 108 क्लास बार चालू है जब से गए थे 108 बार नाम पुकारा हमने तुम दोनों भाई बहनों का सर मैं तो रियल में गया हुआ था। तो रियल ये भी रियल में गई हुई थी नहीं सर ये तो फेक में गई हुई चल थी। अंजलि आंसर दे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन द सिटीज डीजे लाउड स्पीकर्स। आदित्य Sir, अरे बाप DJ loud and other speakers and especially vehicles so horns and because and and in when the when we go any marriage so many people play that things so this is the source of noise pollution. 10 में से 4 नंबर सर अंजलि के भी 4 नंबर सर हाँ भाई लक्ष्मी सर ये बात बोलनी है हाँ यस सर बंदे ने पूरी रामलीला बोल बता दी तुमने नहीं बताया राम कौन था तेरे को समझ में नहीं आया होगा ना वही तो इसलिए तो 10 में 4 दिए हमने कब पास कर दो फेल कौन करे चलो आजकल बच्चों पास तो कर दो 4% की 40% की क्या वैल्यू है खुद ही समझदार है बोल लक्ष्मी यस सर रेलवेज ऑटोमोबाइल्स एंड बस स्टॉप एंड बस मार्केट स्टॉप आर कैसे द बस स्टॉप कैसे when the अरे bus बस सर स्टॉप वहाँ कैसे हो गया अनाउंसमेंट यार होती सोर्स रहती है ना बस स्टॉप और मार्केट कैसे सोर्स हो गया because there are many people अरे यार they गजब कर दिया तूने तो मेयर मैनी पीपल का क्या मतलब हो गया मार्केट थोड़ी शोर कर रहे हैं यार मार्केट में थोड़ी शोर निकल रहा है तो बस स्टॉप पे शोर निकल रहा है जगह जगह से no sir सर मच्छी मार्केट ऑटोमोबाइल्स Re- रेलवेज railways एयरक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स yes sir एंड सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज ये आया है जो पैसेज में आया है वो बोलो मन में मत लगाओ हम शादी में जाते सर हैं तो नाम तो फलाना लो जाता है ढिमका ज्यादा ज्यादा पंचायत करने की कायदे से बोलो जो चीज है वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट vehicular pollution is the highest air pollution simple question वैष्णवी वैष्णवी सर नहीं पता. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सर समझ में तो आ गया वैक्यूलर. pollution is the highest air pollution is there anything in this passage that can show that that vehicular pollution is the highest air pollution harshit Sir, because it covers 2/3 of the air yes pollution. but it accounts or covers 2/3 of total air pollution एक जरा मैं आपको वन वर्ड पूछ रहा हूं सेंडिंग आउट ऑफ लाइट गैस हीट एटसेट्रा वो क्या कहलाता है अरे वाह लक्ष्मी लक्ष्मी समझ गई सही बोला तूने बेटा
हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। देख ऐसे थोड़ी कि हम सुन के ही बताएंगे तुम्हारे को, बट आई एम नॉट आस्किंग टू। यस कम ऑन विपिन। So can I repeat your question? Can you repeat this question? Yes, sir. My question is that, ध्यान से सुनो जरा, ऐसे दिमाग की चीजें होती है। सेंडिंग आउट ऑफ लाइट, गैस, हीट एटसेट्रा। सिमरन, एमिशन, बिल्कुल परफेक्ट। किसी भी लाइट में से, हीट में से, गैस में से कुछ ही चीज का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एमिशन ही तो कहलाता है। हमारी एक बात तुम्हें बताना भूल गया तुमको, एक अपने अंदर भी से तो होती है, गैस बाहर निकलती है कि नहीं निकलती? कई बार निकलती है ना। सब हंसते हैं जब, फिर तो कोशिश यही रहती कि पता नहीं चले किसी को, चुपचाप एमिशन कर दें अपन। तो कई बार आवाज आ जाती है तो फिर क्या होता है? तो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एमिशन। अब वो गैस के रूप में बाहर निकल रही है, मतलब अपन ने जो खाया पिया कुछ भी किया तो उसमें से तरह तरह की जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से कुछ कैसे निकल रहा है, कुछ कैसे निकल रहा है, कुछ कैसे निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? दैट सर तीनों स्टेट में बाहर निकलते हैं। हाँ, तीनों स्टेट में बाहर निकलता बाहर है, आता है। तीनों स्टेट में बाहर सॉलिड लिक्विड गैस। या सॉलिड लिक्विड गैस। सर एक्वस में भी बाहर आता है। अरे बस करो यार, ये कोई भी टॉपिक मिल जाए तुम्हारे को चालू हो जाते हो बस। अभी नहीं रोको तो पता नहीं क्या क्या हो जाए फिर यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ नाइट? दिस इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ नाइट? अंजलि। डे। अरे वाह, शाबाश, ताली बजाओ सब अंजलि के लिए। आज एक और एप्लीकेशन भेजेंगे, भारत रत्न का पुरस्कार दिलवाएंगे हम इसके लिए आज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जांपल ह्यूमन बॉडी। सब भला, अंत भला सो सब भला। आखिरी के क्वेश्चन का अंजलि ने जवाब दे दिया, सब ठीक हो गया। वेरी गुड, ओके, चलिए ठीक है। यानी वॉरियर। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम टुडे, नाउ आई एम एंडिंग दिस लेसन। थैंक यू।